students, my name is Pavneet and welcome to my channel IELTS with Pavneet. Today we are going to discuss a new cue card, and that is describe a person you would like to study or work with. Let's read the cue points as well. Your first question is, who is that person? Why you would like to study with him or her? What will you study? So now here you need to talk about a person with whom you like to study or work with. So it's totally up to you. You can talk about your sister, you can talk about your brother, you can talk about your friends, or even you can talk about your relatives or your parents. It's totally up to you. And you can either choose about study or you can choose about work. Now let's read the cue card. So, being a social butterfly, it's a piece of cake for me to mingle with others. Mind you, I'm ashamed to admit that till now, I haven't got an opportunity to do my studies with a bookish boy, and he is none other than Mr. Anmol Singh. So now let's understand that in Hindi as well. So here I have started by saying social butterfly. सोशल बटरफ्लाई का मीनिंग होता है कोई ऐसा पर्सन जो एक्सट्रोवर्ट होता है, मतलब जिसको लोगों वगैरह से बातें वगैरह करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, उसको अपने क्या कहते हैं, सोशल बटरफ्लाई. सो मैंने कहा बीइंग अ सोशल बटरफ्लाई इट्स अ पीस ऑफ केक. पीस ऑफ केक मतलब बहुत ही ईजी होना. जहाँ पर आप ईजी कहना चाहते हो देयर यू कैन यूज़ अ पीस ऑफ केक. सो मैंने कहा बीइंग अ सोशल बटरफ्लाई इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी टू मिंगल. मिंगल मतलब एक दूसरे से मिक्सअप हो जाना. माइंड यू का मीनिंग बट. देन आई एम अशेम्ड टू एडमिट दैट मीन यू आर फीलिंग गिल्टी. आप लाइक गिल्टी फील कर रहे हो, देयर यू कैन से आई एम अशेम्ड टू एडमिट दैट टिल नाउ आई हैवंट गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू डू माई स्टडीज़ विद अ बुकिश बॉय. बुकिश मतलब ऐसा कोई पर्सन जो सारा दिन बुक्स को रीड आउट करता रहता है, उसको अपने बुकिश कहते हैं. बुकिश बॉय एंड ही इज़ नन अदर दैन मिस्टर अनमोल सिंह. If I'm not mistaken, when I was studying in school, on that time, around the clock, he used to read books, especially academic ones, because he was a bibliophile, and from that moment on, it has been on my bucket list for ages to do my studies with him, especially that particular subject, which is quite daunting for me, and that is mathematics. Okay, so now I have used, if I'm not mistaken, so try to use that one when you wanna say I vividly remember. So जब भी आप I vividly remember कहने जा रहे हो, वहाँ पर आप क्या use कर सकते हो, if I am not mistaken. Then I have used an idiomatic expression and that is around the clock. Around the clock का मीनिंग होता है जब आपने बोलना होता है 24/7, वहाँ पर अपने क्या यूज़ करेंगे, around the clock. देन अ बिब्लियोफाइल. बिब्लियोफाइल का मीनिंग होता है अ पर्सन हु लव्स टू रीड बुक्स. ऐसा कोई पर्सन जिसको बुक्स वगैरह रीड आउट करना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, देयर यू कैन से बिब्लियोफाइल. ये कहने की बजाय कि आई लाइक रीडिंग बुक्स, आप क्या कह सकते हो, आई एम अ बिब्लियोफाइल, इस तरीके से. देन मैंने बकेट लिस्ट यूज़ किया. बकेट लिस्ट का मीनिंग होता है विश लिस्ट. अभी जैसे आप कह रहे हो कि आपका कनाडा जाना आपके क्या है, विश लिस्ट पे है. सो आप कैसे कहोगे, इट हैज़ बिन ऑन माई बकेट लिस्ट फॉर एजेस टू विजिट कैनेडा, इस तरीके से. देन मैंने एक वोकेबलरी वर्ड यूज़ किया एंड दैट इज़ डॉन्टिंग. डॉन्टिंग मीन डिफ़िकल्ट. जब भी आप डिफ़िकल्ट कहने जा रहे हो, नेक्स्ट टाइम ट्राई टू यूज़ द वर्ड एंड दैट इज़ डॉन्टिंग. ओके. As a matter of fact, I've heard from my bosom friends that he has a knack for solving equations at a drop of hat, and he is impeccable in terms of calculation as well. So by doing studies with him gives me an opportunity to learn all the tips and tricks that he has been using for ages to solve mathematical problems. Even when I was studying in class 11th, he was my senior, and I always look up to him. सो नाउ आई हैव यूज्ड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इट्स मीन एक्चुअली. जब भी आप एक्चुअली कहने जा रहे हो, जो कि बहुत ही कॉमन और सिंपल वर्ड है, सो उसकी जगह पर आप क्या यूज़ कर सकते हो, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट. देन मैंने बूजम फ्रेंड्स यूज़ किया, मे बी यू हर्ड अबाउट दैट एज वन. सो बूजम फ्रेंड का मीनिंग होता है जब आपने बेस्ट फ्रेंड कहना होता है. देन आई सेड ही हैज़ अ नैक फॉर. जब भी आपने कहना है ही इज़ गुड एट, ये कहने की बजाय आप क्या कह सकते हो, ही हैज़ अ नैक फॉर. नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, आई एम गुड एट कुकिंग, आई एम गुड एट सिंगिंग. अभी ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है. सो यहाँ पर अपने इसको इम्प्रेसिव कैसे बना सकते हैं, अपने कहेंगे आई हैव अ नैक फॉर. ठीक है, आई हैव अ नैक फॉर कुकिंग, आई हैव अ नैक फॉर सिंगिंग, समथिंग लाइक दैट. देन मैंने यूज़ किया एन इडियोमैटिक एक्सप्रेशन एंड दैट इज़ एट द ड्रॉप ऑफ हैट. एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, इसका मीनिंग क्या होता है, जब आपने इमीडिएटली कहना होता है. ठीक है. देन इम्पैकेबल. इम्पैकेबल मीन परफेक्ट.
बेस्ट जब आप Even when I was studying in class 11th, he was my senior and I always look up to him. On that time, he passed his class 12th with flying colors. Honestly, every student in my school literally jumped out of their skins when he got full marks in mathematics, which has been considered an uphill subject. सो अभी देखो मैंने अपने आंसर की यहाँ पर यूज़ कर दिया मैंने कहा लुक अप टू सो लुक अप टू इज़ अ फ्रेजल वर्ब एंड ट्राई टू यूज़ दैट व्हेन यू वांट टू से दैट यू रिस्पेक्ट और एडमायर अनदर पर्सन जब आप कहना चाहते हो कि आप उस पर्सन की बड़ी ही रिस्पेक्ट करते हो आप वहाँ पर क्या कह सकते हो लुक अप टू जैसे चिल्ड्रन ऑलवेज अपने पेरेंट्स की क्या करते हैं रिस्पेक्ट करते हैं तो वो कैसे कहेंगे चिल्ड्रन ऑलवेज लुक अप टू देयर पेरेंट्स इस तरीके से देन मैंने यूज़ किया फ्लाइंग कलर्स फ्लाइंग कलर्स का मीनिंग होता है जब आपने कहना होता है गुड मार्क्स वहाँ पर अपने यूज़ कर सकते हैं फ्लाइंग कलर्स जैसे आप कह रहे हो आई पास्ड माई एग्जाम विद गुड मार्क्स अभी ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस हो गया अभी इसको इंप्रेसिव कैसे बना सकते हो आप कहोगे आई हैव पास्ड माई एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स इस तरीके से देन मैंने यूज़ किया जंप आउट ऑफ देयर स्किन्स अगर पास में यूज़ करना चाहते हो तो ईडी वाली फॉर्म लगा दो जंप्ड आउट ऑफ देयर स्किन्स इसका मीनिंग होता है जब आप सरप्राइज बता देते हो जब भी आप सरप्राइज बताना चाहते हो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो जैसे आप कह रहे हो कि आपको जब सेलफोन आपका न्यू सेलफोन मिला आप टोटली सरप्राइज हो गए तो आप क्या कहोगे आई लिटरली जंप्ड आउट ऑफ माई स्किन व्हेन आई गॉट माई न्यू सेलफोन इस तरीके से देन मैंने यूज़ किया अपहिल अपहिल का मीनिंग होता है डिफ़िकल्ट अपनी डिफ़िकल्ट का ऑलरेडी एक अल्टरनेटिव कर चुके हैं एंड दैट वाज डॉन्टिंग अभी न्यू अल्टरनेटिव हो गया अपना अपहिल वाला After that, my school also organized a party specifically for him. And there he gave a speech about studying, and his words put a charismatic impact on my mind. And immediately I had decided to do my studies with him. Even not only me, but also my friends also praise him to skies for his hardworking and amicable nature. So here I have used a word and that is charismatic. Try to pronounce it correctly. You have to say charismatic. 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 Pronounce it again. Charismatic. Yeah. So charismatic basically means when you want to say attractive और बेसिकली वी यूज़ दैट फॉर अ स्पेशली पर्सन एज वेल बेसिकली जब आप बताना चाहते हो कि ऐसा कोई पर्सन जो ईजिली इन्फ्लुएंस कर पाता है अनदर पर्सन को अट्रैक्ट कर लेता है अपनी ओर कोई पर्सन किसी को उसके लिए अपने यूज़ करते हैं कैरिस्मेटिक देन अपने यूज़ किया प्रेज हिम टू स्काइज मतलब किसी की बहुत ही ज़्यादा प्रेज की जा रही है वहाँ पर अपनी यूज़ करेंगे ठीक है देन अपने यूज़ किया एमिकेबल एमिकेबल का मीनिंग होता है फ्रेंडली So in future, if I ever get a chance to do my studies with him, I would never miss the boat. Even though I know that it is a Herculean task for me to do so because he has been living in Canada for last 2 years now. Still, I will give my best that I will get a chance to share my study time with him.